myself have joined Parvane Khanam for this so that I can interact with a lot of people. And I can say that our mentors, Mr. Asad and Ms. Sabah Durrani, the guest speakers here, are someone who can, we take a lot of, like you can say, we can take a lot of information about and how we can grow in our lives. So I'll introduce Ms. Sabah Durrani. I can't see her, I guess. So Ms. Sabah Durrani is the project manager of Parvane Khanam, and she's also a member of YEF. I don't know how it pronounced, Youth Entrepreneurship Standing Committee. So I'll tell her how to. Please kindly introduce yourself briefly, and then I'll tell Mr. Asad to introduce himself too. Thank you. I'm sorry for Thank the you so much, Anam. busy. I'm not sure. That's totally fine. We are here to tell you what it is exactly. And I'm sorry if you cannot see me. I don't know what the problem is. No. And I'm sorry for the noise in the background. Okay, my name is Sabah Durrani my name is Sabah Durrani and I'm right now project manager for Parvane Khanam. Before that, I was totally and completely associated with an education institute, and my education is MBA. I have done MBA in HR. So that is a short and sweet option. Interesting. I really like the Chase Dream. This is a very interesting topic you guys chose today. And Parvane Khanam pe hum aate hain. So Parvane Khanam is basically a platform for female entrepreneurs and female artists and anyone who has capabilities. And hame pata hai, we know around us there are many females who have done a tremendous job in the society and working so well. But we unfortunately have very few platforms jahan pe unko encouragement and they get to showcase their talents. So Parvane Khanam is doing that for them. Or I think after Asad is introduced, then I'll talk more about it. And yes, I forgot to tell you, yes, is youth. Now I have forgotten it. A youth entrepreneur standing committee in Chamber of Commerce, and it is working for young entrepreneurs, including male and female, and it is registered in Sarhad Chamber of Commerce. So that's what it's doing. Over to you, Ahad. Hello, Ahad. Can you hear us? Yes. Thank you, Anam, for giving me the opportunity. And before to introduce myself, I will mention here that our session core purpose is women empowerment. And I think the way you take initiative, you prove that the women can take initiative and they can do everything. So coming towards myself, I'm Abdul Ahad Qureshi. I'm a student of IM Sciences, doing my master's in business administration. As Anam has introduced one of our special guests, I will introduce another guest, Mr. Asad Ashfaq, who is the co-vice chairperson of the Parvane Khanam and also vice chairman of the YESC. असद साहब हम आपसे वही बात के आपकी कहानी आपकी जुबानी आपसे सुनेंगे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे पार्टिसिपेंट्स को और along with that also share the other accomplishment and other milestone that you have achieved in your life so the participants will get easy to interact with you. All right, G. So thank you so much, G. So thank you, Anam, and thank you, Ahad, for introducing me and Sabah. And first of all, I really appreciate the efforts of Anam, Ahad, and whoever is behind the idea of this talk on entrepreneurship and stuff. I'm glad to see my juniors from IM Sciences as I'm from IM Sciences, and there's a very dedication with that institute. And whoever is working for any cause from IM Sciences, मेरे लिए मेरी दिल और जान जो है उनके लिए हाजिर है. Because the association that have with IM Sciences and with the students of IM Sciences is way more than any other thing. So as you all know, my name is Asad Ashfaq and I'm currently by profession, basically I'm a marketer. My education, bachelor's and master's are from IM Sciences. I was a student, I was associated in IM Sciences from 2013. Since 2020, I've done my bachelor's and master's in that. Alongside, I have done a diploma in supply chain management with major in procurement from IM Sciences. And by profession, I'm a marketer. I'm currently working as a marketing and projects leads with Peshawar Model Schools. I'm looking after their 9 branches related to the marketing and the branding and all the events kind of activities. Alongside, I'm working with Sabah on this initiative. We called it Parvane Khanam, and now it's Parvane Khanam Welfare Organization because it's a registered entity now.
and I'm working as a vice chairman. And previously, I was a male focal person for that. Alongside, I'm the vice chairman, or you can say I'm the one who initiated this YESC. It's Young Entrepreneur Standing Committee. It's a registered committee within Saraj Chamber of Commerce and Industries, alongside with other activities. And the major aim of these YESC is to promote youth and to bridge the gap between the academia and industries. So we have registered industries, we have industrialists there who collaborate with us, and we link them to the graduates and stuff like that for the events and awareness. And alongside, I'm running my business with the name of Double A Creations. Double A are the initials of my name, Asad Ashfaq, and it's basically a digital marketing agency, and I deal with all kind of marketing and branding related activities to different kind of clients nationally. So this was all about my brief introduction that what I'm doing, and looking forward to the session. And I'm gonna share my all the failures with you guys as well, so that you can learn it as well. So that was my introduction. Thank you. Sir, can you please tell us why is entrepreneurship, why is it important nowadays, and why is it all over the world? Every country is focusing on this entrepreneurship word. 2-3 years back, we won't be able to even know what is this thing and what is it called and why is it so. So, sir, please tell us why is it important here? Right. Anam, this word entrepreneurship, when I was in IM Sciences, I heard this one word entrepreneurship when in the first semester in Introduction to Business class. And trust me, this was one of the toughest word. And for the first question that I raised in IM Sciences from Dr. Iftikhar is said, can you please re-announce and can you please help me pronounce this word intra, because entrepreneurship, दिस वॉज वेरी डिफिकल्टी. तो मुझे नहीं पता था कि ये वो वर्ड होगा जो कि आगे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा. You are talking about 2-3 years. I'll take you back to 2013 when I started my university journey. वहां पर तो तब तो बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट था. बुक्स में तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट था, लेकिन पेशावर में उस टाइम देयर वर अराउंड 8 to 10 people जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को जानते थे, और उस टाइम उन्होंने इनिशिएट किया था, and we started studying that. Now coming towards from that, since 2013 till 2020, we have seen a dramatic shift of this entrepreneurship, this boom. मैं अभी basically एक boom का stage ये गुजार चुका entrepreneurship, and now people are confused about कि अब ये boom से decline की तरफ जा रहा है या boom से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है. For me, entrepreneurship, जो मेरी डेफिनेशन है, मे बी समवन कैन एग्री, मे बी समवन कैन डिसएग्री, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. ठीक है, मैं यहाँ पर 4 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल द मे बी आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप, a common business, a CSR activity, and social entrepreneurship. It's very important to know. Now, if I'm running a conventional general store and my main aim is to earn profit, that's what I call it a conventional business. Okay, that's what my aim is profit. Now, there is a one word difference between entrepreneurship and business, and that word is innovation. If you are doing business with the aim and this perspective that you are doing something by including innovation in it, okay? I'll just give you an example. I have given an idea to a local general store. मेरे पुराने सिटी एरिया में एक दिन मैं गया, तो वहां पर एक बाप था जो कि अंकल हम उसको कहते थे, ही पास्ड अवे, तो उनके बेटे ने टेक ओवर कर लिया, एंड इट्स वन ऑफ वेरी फेमस जनरल स्टोर. मैं उनकी शॉप पे बैठा था, मैंने उनको एक आइडिया दिया कि व्हाई डोंट यू हायर अ पर्सन, और इसी जनरल स्टोर को एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स, क्योंकि हमारे सिटी साइड पे हाउस वाइफ्स का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, लेट्स से सुबह 9 बजे से 1 बजे तक जो है आप फ्री डिलीवरी ऑप्शन कर दो विद दिस स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि हमारे शहर के एरियाज बहुत कंजस्टेड हैं. गली गली में लोगों को पता है कि ये कौन सी गली है, ये कौन सी गली है. मैंने उसको आइडिया दिया कि आप 9 बजे से 12 बजे तक डिलीवरी कर दो. इट्स बिकॉज योर सेल विल बूस्ट एंड एवरीथिंग. सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप किसी कन्वेंशनल चीज को भी नए तरीके से किस तरीके से पिच कर सकते हो. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन परवाने खानम एज वेल, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक लोकल चीजों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके से कर रही है, इनोवेटिव तरीके से कर रही हैं. आई लीव दैट टू सबा, वो जब सबा बात करेंगी तो शी विल टेल यू अबाउट दिस थिंग. बट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर मी इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट के हाउ यू टेक थिंग्स एंड हाउ यू डिफरेंशिएट थिंग्स. देन इट कम्स द CSR एक्टिविटीज एज वेल. द CSR एक्टिविटीज इज कंसर्न्ड विद द बिजनेस. एक MNC एप्पल है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, who are doing local businesses, and वो अपनी इनकम का एक हिस्सा किसी सोसाइटी को सर्व करने के लिए अगर
रख देती हैं कि हम किसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, that comes under social, that comes under CSR. And the last concept is social entrepreneurship, and it's very important to understand the concept of social entrepreneurship. Social entrepreneurship पे you bring innovation, but you have to identify a problem basically in your society. You have to identify the problem in your society, and then you have to solve it in a business with an aim to serve the society. सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप इस तरीके से कर रहे होते हो कि आप पैसा भी कमा रहे होते हो लेकिन सोसाइटी को भी सर्व कर रहे होते हो, एंड दिस इज व्हाट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड NGO, क्योंकि NGO is purely on donation basis. If the donation ends, the NGO ends. That's why the concept of social entrepreneurship is more famous and it has edge over NGO. Now coming towards जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या हिसाब है, the world has changed. In last 1 year, the world has changed rapidly, in dramatically, and every aspect से जो है लाइफ चेंज हुई है. एंटरप्रेन्योरशिप अब जो है किसी एस्पेक्ट में बहुत अच्छे सेंस पे जा रहा है, किसी एस्पेक्ट पे ये भी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप भी इफेक्ट कर रहा है. बट रैपिडली विद द क्वेश्चंस हम उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे तरीके से किया जा सकते हैं. बट फॉर मी, ड्यू टू दिस पेंडेमिक एंड ऑल, एवरीथिंग इज सफरिंग, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द थिंग कि जो स्टार्टअप्स भी लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे वो भी सफर कर रहे हैं आजकल की सिचुएशन से. Thank you, Abdulahad. What do you? Okay, thank you, Anam. My question is from both of you कि जब हम बात करते हैं इंजीनियर, ठीक है, तो इसको हम एज अ प्रोफेशन लेते हैं, डॉक्टर एज अ प्रोफेशन लेते हैं. जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, सो ये इस टर्म को हम एज अ प्रोफेशन कंसिडर करेंगे या एज अ पैशन कंसिडर करेंगे एक बंदे के लिए जो कि एस्पायर है एंटरप्रेन्योरशिप से? Sabha, if you like to answer. Yeah, I think it's very interesting question, Abdulahad, I must tell you. क्योंकि देखिए जब हम when I'm hired for a job, तो मुझे पता है कि इस वो 8 बजे I have to get up and I have to be there. If I'm not, my salary will deduct or my report will be affected by it. This is what I'm considered. But when it comes to entrepreneurship, then it's totally upon my will. So we say that it's not a designation or a professional thing, but it is. But it's totally depending on our own will of doing it. Outcomes बहुत ज़्यादा अच्छे हैं from entrepreneurship, yet we promote and we want a stable job. The thing is mindset, how we see it. हमारे लिए एक salary 40,000 की salary by the end of month आना is more reliable and more authentic than having an entrepreneurial startup जहाँ से हम लोग the more input we give, the more output we get. तो ये चीज थोड़ा सा I think it's more of a mindset thing, and engineering degree is not bad. I must tell you, I have to tell this again, कि engineering degree is not bad. One should do it. But yes, if you have an idea related to that or that can add up to your entrepreneurial startup, why not? Go for it. Don't stop yourself from getting an engineering degree because it's conventional and it's outdated or something. You must do it, but if you have a good idea that can help, that engineering can help you in that, why not? Why not? Don't stop yourself कि बस अब engineering कर ली, I'm not going to start a business because I can get a good job and एक government job लग जाएगी and I'll get paid pension and all. That's not the end. So I think this is what the problem is कि हमें समझने में mistake हो जाती है that a job is better than an entrepreneurship, but basically it's all depending on us and how we think about it. Right. मैम मैंने आपसे एक बात जी, जी. पूछनी थी, like the word business is always attached to men. कोई भी अगर वर्ड बोले कि ये बंदा बिजनेस करे तो हम कहते हैं कि वो मर्द ही होगा या कोई बॉय ही होगा. सो आजकल केपी में ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन के साथ जो आप रिलेट कर रहे हैं, तो ये कैसा जा रहा है? एंड डू टेल मी कि कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं एज अ वुमेन, तो उनके बारे में जरा हमारे फीमेल पार्टिसिपेंट्स को बता दें. Anam, it's a very interesting question, and I have very interesting things to say about it. हम लोग being female myself, I did my MBA. It was a pure business education. सारा कुछ business से related था. हमें बताया जा रहा था how to start entrepreneurship समझाएगी, management समझाएगी, हमें leadership बताया गया. But mindset था कि हमने job के लिए जाना है. We have to acquire a job that can give us certain amount of money by the end of a month.
अभी थोड़ा सा देयर इज अ शिफ्ट, जैसे कि अभी ये परवाना खानम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक चीज हमने देखी है। द थिंग इज कि जब मेन के साथ बिजनेस को एसोसिएट किया जाता है, दैट इज बिकॉज men have more platforms. Don't get offended on it कि opportunities की बात है, we have opportunities as well, but it is not identified to us. मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल घर की अगर मैं बात करूँ, आई हैव टू डिपेंड ऑन माई काउंटर पार्ट्स. मेरे माई फादर, माई ब्रदर, माई हस्बैंड, आर दे ओके विद इट? ओके फाइन. व्हेन दे डू इट, ओके फाइन, आप कर सकते हो जॉब. एंड देयर इज नो मोर, देयर नॉट मेनी authentic platforms for us जहाँ पे हम जाके अपने entrepreneurial कहीं पे हम pitch कर सके अपना, we get a space जहाँ पे एक चीज हम लोग promote कर सके in this society. तो men के साथ associated, it is because they are more, they don't care about these things, these social norms that we have, the culture. Oh, he's doing a business, great, he can do it. But a woman start a business, अभी तो ये मर्दों में जाके बैठेगी. She has to deal with men. ये प्रॉब्लम जो है हम लोग पहले फेस करते थे. अभी दैट इज थोड़ा सा शिफ्ट, आई हैव सीन अ शिफ्ट इन इट. अभी फीमेल्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बिजनेस एंड मेन आर ओके विमेन डूइंग बिजनेस बिकॉज जॉब इज अ बिट थोड़ा सा उस पे आ गया कि दे हैव वो ऑफिस में बैठना, एंड दैट इज मोर लाइक गॉन डाउन देन अ बिजनेस. अगर मैं घर से बैठ के एक अच्छा बिजनेस कर रही हूँ तो व्हाई नॉट डू इट. वही मेल पार्टनर्स हमें उधर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें जो पहले कहते थे ना करो. नाउ दे आर मोर ओके विद अस डूइंग बिजनेस देन गोइंग फॉर अ जॉब. तो आई थिंक देयर इज अ बिग शिफ्ट इन इट. We are still working. And We need more Sabha, platforms जहाँ पे if you can please उस पे भी बताएं कि जो बिजनेस आइडियाज हमारे पास आ रहे हैं, they are from every field, and now we are seeing yes. हम हर फीमेल को हर सेक्टर पे, हमारे पास फर्नीचर कोई बना रहा है तो वो भी हमारे पास फीमेल है. हमारे पास हर सेक्टर से जो है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाना, जिसको मर्द हम देखते हैं कि स्वीपर्स जो हैं वो सब कर रहे हैं. वी हैव अ स्टार्टअप विद द नेम ऑफ पेशावर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी. शी इज आवर alumni, Hasina Hussain. She has recently won a national award as well, and a female running a 35 people organization, leading 35 बंदों को वो लीड कर रही हैं. सबा, continue please. Yeah, so now it's changing. अभी वही बात कि now female are more happy towards, and वही बात कि मैं घर बैठ के एक आइडिया मेरे पास है, कोई भी आइडिया, any idea related to medical or related to textile or designing or art and craft or any kind of idea, we just need to take an initiative. हमारे पास female में जो अभी मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम आ रही है, they don't think they were not worthy enough. क्योंकि उनको मुकाबला मर्दों के साथ जाके करना पड़ता है. The businesses the men have, they are more they have more वो थोड़ा grasp on the business part than female, because Potential. we have potential, and female have a lot of potential, but they know exactly how to come out of it, how to present themselves, how to present their idea in a way that look authentic. And दूसरी बात acceptance. If I think there is no war between female and male. First of all, there's a big misconception कि female comes forward तो बस वो मर्दों को टक्कर दे आ रही है. It's not like that. Never. Female have their own space and male members have their own space. वो चीज मेरा नहीं ख्याल इस चीज को नेगेटिव तरीके से बताना चाहिए. We should both can collaborate together and work and help each other grow in this process. अगर मैं इस सोच के साथ निकलूं कि अभी तो मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है that I have to compete a boy or a guy in it, तो बस that is gone. That is a wrong approach. तो मेरे ख्याल में the support of both the male female part, then I think that will grow, even it will get better, even in Peshawar, because I know rest of the cities they are doing very well in this field, but in Peshawar we still facing this male dominancy thing. Yeah, I'll add something. जैसे हम यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें हम कोलैबोरेट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स. तो कुछ हम क्रिएटिविटी के वाले काम लड़कियां कर लेती हैं, बाहर जाने वाले लड़के कर लेते हैं. सो एक बहुत अच्छा एंड अप और रिजल्ट आ जाता है. लेकिन अगर सिर्फ हम गर्ल्स ही मैनेज करें अपना प्रोजेक्ट और सिर्फ बॉयज ही करें तो कहीं ना कहीं उनमें क्रिएटिविटी लैक करेगी और हमें बाहर जाना आना और वो लोग साथ इंटरैक्ट करना जो जैसे हम नहीं कर सकते, जहाँ हम नहीं जा सकते. सो दिस इज द थिंग, इफ वी कोलैबोरेट विद ईच अदर बॉयज एंड गर्ल्स, सो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, rather than fighting each other कि मैं तुमसे अच्छा हूँ तुम मुझसे अच्छे हो, और फेमिनिज्म और वो सब कुछ आ जाए. So we should say that you have your own importance and you have your own importance. Everyone has some place. Yeah. Yes. और it's not just कि बस मैंने आपको इंटरप्ट किया. नहीं,
It's fine. वो मैं आपको ये कहती हूँ, you said art part female cater करती हैं and then run around वाले काम जो होते हैं थोड़े से वो मर्दाना, but that can also be mix and match. I have seen men who have good artistic taste. वो उनका aesthetic sense मैंने देखा है, who are good in that. वो करते हैं, they are good. Why not give them? Why shame them कि oh अच्छा ये तो औरतों वाले काम है, और a woman who is very good in dealing. Yeah, dealing with other Yeah, people. So yeah, you know, it's both never between. yeah, There is yeah, exceptions हो सकती हैं बिल्कुल. well, Ahad, hello. there are. We need to be accepting. We need to have that acceptance for both Yeah. the parties. I Yeah, think, fine. Let's do this sorry, together. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, लेकिन यहाँ वही बात आएगी कि हम इक्वलिटी के बजाय इक्विटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम किसी चीज को अप्लाई करेंगे तो वही इक्विटी की तरफ जाएंगे. एंड आई थिंक इन टुडे वर्ल्ड इट डजंट मैटर दैट यू आर मेल और फीमेल, यू आर ह्यूमन एंड it depends on your capacity and potential. So I will proceed with the question from Mr. Asad कि आप जिस तरह आप incubation चला रहे हैं, mostly women concern है, लेकिन जब एक entrepreneur mindset आता है, मतलब हम बात करेंगे प्री माइंडसेट की और पोस्ट माइंडसेट की, जब वो इंक्यूबेशन के प्रोसेस से गुजरता है. सो हाउ वुड यू डिफाइन द माइंडसेट कि जब एक बंदा आता है और उसने प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तब उसका माइंडसेट क्या होता है, और जब वो उस प्रोसेस के थ्रू से गो थ्रू हो जाता है तब उसका क्या माइंडसेट होता है. सो हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस एंड हाउ इट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर. Right. Ahad, before answering this question, I'll just comment on the previous question that you asked from me and Sabah. डिस्कशन में मुझे वो पॉइंट नहीं मिला, बट आई जस्ट वन पॉइंट जो कि मैं क्लियर आप लोगों को करना चाहता हूँ. आपने पैशन और इसका उसका पूछा था, तो इट्स प्योरली पैशन. ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं सिर्फ सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से आपको दूंगा कि डूइंग योर बिजनेस, रनिंग योर स्टार्टअप्स और डीलिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली व्हाट यू आर बेसिकली डीलिंग विद द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स समथिंग दैट्स योर बेबी. ठीक है, ये वो 1 साल का या 2 साल का वो बच्चा है जिसको आपने कपड़े पहना कर जो है मार्केट में या किसी शादी पर लेकर जाना है. ठीक है, किसी शादी या किसी फंक्शन पे अगर आप जा रहे हैं और आपके पास आपका 1 साल का या 2 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको कोई सेंस नहीं है कि मैंने क्या पहनना है. उसको उसकी माँ ने और उसके बाप ने जो पहना दिया वो वही पहनेगा, वो हंसी खुशी रोता हुआ वो चीज चला जाएगा. बट अगर आपने उसको अच्छे कपड़े पहनाए हैं, इफ ही और शी इज स्माइलिंग विद ऑल द आउटफिट दैट यू basically brought him or her, तो वो अच्छा फील करेगा. तो सेम इज द केस विद एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स समथिंग दैट यू हैव रेज्ड, आपने इसको पैदा किया है, अब आपने इस चीज को आगे लेकर जाना है. तो जितनी आप इसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे, जितने अच्छे कपड़े इसको पहनाएंगे, उतनी अच्छी ये चीज लगेगी. दूसरी पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाह रहा था कि इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब सेक्टर. प्लीज काइंडली इस बात को आप लोग समझे, और इसी बात को यही वो यूथ है और यही वो आई एम साइंसेस का प्लेटफॉर्म है और यही जितने लोग हैं, आप लोगों ने इस चीज को प्रमोट करना है. देखें, इफ आई एम बीइंग गोइंग फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप, इफ आई एम स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, मैं तो जी एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, मेरे पास माइंडसेट है, मेरे पास आइडिया है, लेकिन आगे जो बंदे हायर करने, आगे जो 50 बंदे मैंने हायर करने जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, दे आर वो जॉब के माइंडसेट से आए हैं. तो इट्स नॉट समथिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब में कोई जंग चल रही है. ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, उसका हेड जो है, whether he or she is a businessman or is businesswoman or an entrepreneur, ठीक हो गया. तो ये वॉर नहीं है. थर्ड पॉइंट आई वांट टू कमेंट इस एंटरप्रेन्योरशिप का चार्म ये है, ये इट्स नॉट अ फील्ड. वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर एन इंजीनियर, वेदर यू आर अ साइंटिस्ट, whether you are an artist, you can continue with your engineering degree and then you can have a startup of engineering something and you can basically market it with the help of entrepreneurship. We have startups in Parwane Khanam. From majority startups हमारे पास आते हैं डॉक्टर्स के. KMU की फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं MBBS के डॉक्टर के, हम फिजियोथेरेपी का सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं. वी वांट मेंटल इलनेस का जो है और ये डिप्रेशन को करने के लिए हम कोई ऐप लॉन्च करना चाहते हैं. अब दिस इज नॉट समथिंग कि हम डॉक्टर्स की बुराई करना स्टार्ट कर दें कि देखो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो कि डॉक्टर्स ने, डॉक्टर का प्रोफेशन इनको नहीं लेना चाहिए था. वो डॉक्टर के प्रोफेशन के बाद ही उनको एंटरप्रेन्योरशिप का लिंक आया कि उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट करना है. तो इसके चार्म ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बिजनेस फील्ड हर फील्ड के साथ इंडल्ज हो सकती है. वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर इंजीनियर और यू आर मेकिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, यू कैन सेल देम आउट विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल. नाउ coming towards your abhi ka question related to the mindset, unfortunately और fortunately एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, इसको फैंटेसाइज किया गया इन अ समथिंग के आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, आप बिजनेस आइडिया की तरफ जाओ,
you will get hell a lot of money. आपको बिल गेट्स, आप लोगों को स्टीव जॉब, आप लोगों को एलन मस्क की वीडियोस दिखाकर गुमराह किया जा रहा है, ठीक है? एवरीबडी, हम उनको देख रहे हैं कि एलन मस्क जो है वो अभी खड़ा हुआ है और सोलर पे और मार्स पे वो काम कर रहा है। हम बिल गेट्स को देख रहे हैं, हम स्टीव जॉब्स को देख रहे हैं कि वो इधर होता है, उधर होता है, बट यू हैवंट सीन जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है? तो हमारे ग्रेजुएट्स का एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट, हमने, मैं आई एम साइंसेस में ही, हमारा टीचर जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता था, उसने यही सबसे पहले दिन आकर कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी टॉट विद इन द क्लास, एंड अ पर्सन हु हैज नॉट बीन इनटू बिजनेस फील्ड कैन नॉट टीच यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस फील्ड, क्योंकि जब तक आप मार्केट में रह के रगड़ा नहीं खाओगे, आपको पता नहीं होगा कि आपने सप्लायर्स और उनको मैनेज कैसे करना है, आप लोगों ने कभी क्रेडिट पे काम नहीं किया, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं कर सकते। नाउ व्हेन अ स्टार्टअप कम्स टू अस, वो वही फैंटेसी लेकर हमारे पास आ रहा होता है। उनके पास आइडिया जरूर होता है, बट पॉलिशिंग की देर होती है उनके पास, ठीक है? हमारे पास आइडिया आता है, ये हमारा आइडिया है, अच्छा जी, मैं उनसे पूछता हूँ कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? जी, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है? पैसा कैसे कमाओगे? वो कहते हैं हम पैसा इस तरीके से कमाएंगे। हमारे स्टार्टअप्स को ये नहीं पता कि अगर ये कोक की बोतल है और ये मैं कोई इस तरह की एक बोतल बना के कोई इक्विपमेंट या कुछ भी कोई चीज बेच रहा हूँ फॉर 60 रुपीज, तो वो सारी कहते हैं कि ये 60 रुपए मैंने कमा लिए। ये 60 रुपए सर आपने कमाए नहीं है, इस 60 रुपए में 40 रुपए तो आपका खर्चा आया है इसके ऊपर, वो 40 रुपए तो आप पहले निकालेंगे इसमें से, और 20 रुपए आपने कमाए हैं, तो 40 रुपए इज अ बिग चंक। अगर आपकी ये चीज नहीं निकल रही तो आप बेसिकली उस 40 रुपए में नुकसान कर रहे हैं। तो माइंडसेट की जहां पर बात है कि इस चीज को एक्सप्लॉइट इस सेंस में किया गया कि आपको रियलिटी नहीं बताई जाती, एंटरप्रेन्योरशिप की रियलिटी नहीं बताई जाती कि इट्स समथिंग, अगर आप का मूड नहीं है, अच्छी बात तो ये है कि अगर सुबह 9 बजे मेरा जाने का मूड नहीं है तो मैं सुबह 10 बजे जाकर दुकान पर बैठ जाऊंगा, लेकिन उस 9 से 10 बजे के दरमियान के जो आपकी सेल्स है वो रुक रही हैं। अलबत्ता अगर मेरी जॉब है, अगर मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं जस्ट जाके वो खाना पूरी वाला हिसाब भी कर रहा हूँ, महीने के एंड पे मुझे 50,000 रुपए जो है वो मिल रहे हैं, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट अबाउट द जॉब, एंड दैट्स द नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द बिजनेस। तो हमारे पास जब स्टार्टअप आता है तो उसका माइंडसेट थोड़ा फैंटेसी वाला होता है कि मैंने पैसा, बस मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, एंड ही एंड शी इज नॉट विलिंग फॉर द हार्ड वर्क, एंड ही एंड शी इज नॉट विलिंग फॉर द डेडिकेशन। और जितना रगड़ा रगड़ा, मैं बड़ी देसी जुबान में मैं आपको कहूंगा कि रगड़े के लिए आजकल हमारे पास कोई तैयार नहीं है। वी वांट मनी, वी वांट टू हैव मनी, बट जब रगड़े की बात आती है तो हम नहीं चाहते कि हम रगड़ा खाएं। तो ये एक माइंडसेट में हमारे मसला है यहाँ के। Over to you, Anam. Anam, your mic is mute. सॉरी। आपने जो बात की रगड़े वाली, सो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर मैं खुद अपने आप से शुरू करती हूँ, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कल से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी, वो कल में हम इतने देर ज़ाया कर देते हैं कि हम आखिरी दिन पे हम कहते हैं कि बस ये पास हो जाए, काम हो जाए। सो रगड़ा इज द फर्स्ट स्टेप, कि ये तुम सोच लो कि यस मैंने अपने आप को रगड़ा देना है और मैंने एक काम करना है, और बस जो भी लोग बोलें कि नहीं कर हो सकता, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता, ये सिर्फ अमेरिका के या अंग्रेजों की बातें हैं। सो ये चीज और लोगों की बातें को ब्लॉक करना और सिर्फ काम काम और सिर्फ वही काम करना, वो जो कायदे आज़म ने कहा था, काम काम और काम। सो आई थिंक ये ऐसी बात है कि हमें विद टाइम जब पानी सर से गुजर जाते हैं, फिर हमें याद आता है काश रगड़ा दिया होता तो काम हो जाता। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये अपने दिल और दिमाग में डाल दें कि कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम अपने आप को रगड़ा ना दें। दिस इज द बेस्ट वर्ड कि हम अपने आप को रगड़ा ना दें, और अगर रगड़ा नहीं दोगे तो फिर कल होते चिड़िया चुग गई खेत वाला सिस्टम हो जाएगा, और फिर टाइम भी खत्म, रगड़ा भी खत्म, क्योंकि विद टाइम हमारा मोरल, हमारी मोटिवेशन लेवल कम होती जाती है। जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम कहते हैं कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब हमारे जीपीए एक लेवल तक पहुंच जाते हैं फिर कहेंगे बस सिर्फ जीपीए मेंटेन हो जाए। इसका मतलब ये है कि विद टाइम हमारा मोटिवेशन लेवल ड्रॉप होता है एज के साथ। इसलिए लोग कहते हैं कि जो यंग होते हैं वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और विद एज यू आर जस्ट सो प्रैक्टिकल कि हम उस क्रेजी थॉट्स को सिर्फ समझने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, पैसे कमाना, सक्सेसफुल करियर। सो ये चीज अब पहले से दिल में डाल दें हम सब कि अभी से काम नहीं करोगे तो कल कुछ भी नहीं होगा।
कमिंग टू मैम सबा, मैम आप ज़रा वो अपना जो परवाने खानम ने आज इस दफ़ा जो कंपटीशन आप अरेंज किया है उसके बारे में ज़रा हमारी फीमेल मेंबर्स को बताएं और उनका सारा वो जो ऑर्डर है कैसे अप्लाई करते हैं सारी डिटेल में ज़रा उनको बता दें. थैंक यू. अच्छा, स्टार्टिंग विद व्हाट इज परवाने खानम, थोड़ा सा वो शुरू में अनम ने बताया भी, थोड़ा मैंने भी बताया, मैं दोबारा से स्टार्ट ले लेती हूँ. बेसिकली परवाने खानम हमने स्टार्ट किया था बैक इन लाइक 2 years बैक इन 2018 के हम फीमेल एजुकेशन पे फोकस था कि व्हाई नॉट गिव सम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल, लेट्स हैव एन ओपन डे इन आवर यूनिवर्सिटी. सिटी यूनिवर्सिटी के साथ उस वक्त हम मैं और असद काम कर रहे थे, तो हमने कहा व्हाई नॉट हैव एन ओपन डे जिसमें फीमेल्स को हम इनवाइट करें, दे कैन कम एंड यू नो हम उन्हें स्कॉलरशिप, उसी से आइडिया स्टार्ट हुआ. Then we decided to have an open day जिसमें हम एक business competition कराते हैं female only, एक artist का exhibition, art exhibition कराते हैं, वो भी female only करते हैं. And then slowly and gradually the whole planning of the event got bigger and we included panel talk and उसमें हम लोगों ने there were stalls and everything, but we kept this one, the theme was the same कि female only रहेगा. In that we when we announced the business, उस वक्त भी हमने सारी यूनिवर्सिटीज, इवन आइम साइंसेस को भी, सरहद को, सीकॉस को, फास्ट, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, लाइक फीमेल, हमने सारों को कवर अप किया. उनको हमने लेटर्स भेजे, उनको हमने ईमेल्स की कि आप लोग करें ताकि वो इस चीज में अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर लें. Just to give them awareness, that was the main part. It was very nice to see there were around 74 startups who applied for it. उस वक्त हमारी प्राइस मनी भी 1 लाख रुपीस थी कि हम फर्स्ट जो आएंगे उनको देंगे. So that gave kind of confidence to us कि हाँ यहाँ पे there is potential for female, there are female entrepreneurs who are looking for such kind of platforms जहाँ पे वो अपना business at least showcase कर सकें, they can earn some money for themselves. वो हमारा स्टार्ट रहा. दैट द रिस्पॉन्स वी हैड वाज गुड. हमारे पास गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ. हमारे पैनल टॉक में हमारे पास मिनिस्टर्स फीमेल थी, MPA, वन ऑफ द MPA वाज देयर, द साइकियाट्रिस्ट, द पुलिस ऑफिसर, द आर्मी की पर्सनल, मिसेस कोर कमांडर वाज देयर. So it was quite a good event we had. Then second year, same thing, but on a very bigger scale. Mashallah, the statistics went up, which gave us like, yes, this whole idea is good for Peshawar and it is much needed here. We kept it going. Since last year से हमें COVID का सामना करना पड़ा, but we didn't stop. हमने उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करने की कोशिश की कि हम घर बैठे ऐसा क्या कर सकते हैं. Why not promote females जो कि अपने एंड पे during the COVID भी काम करी हैं या उनका कोई बिजनेस स्टार्टअप है. Why not keep promoting them so they can कुछ ना कुछ फायदा उनको इस प्लेटफॉर्म से होता रहे. बिकॉज वी हैड गुड अमाउंट ऑफ पीपल विद अस जो कि जो इन्वेस्टर्स भी हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन बिजनेसेस, हु आर फीमेल लेड बिजनेसेस, हु आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, हु आर इंटरेस्टेड इन फीमेल्स, हु आर डूइंग समथिंग इन दिस सोसाइटी एंड मेकिंग it much more better. So we kept it like going. Yes Story के नाम से maybe you have heard about it. उसको हमने launch किया. हमने उसमें females को encourage किया to share their stories, their journeys with us, either entrepreneurial journey or just a normal whatever they have been through or a good life they have, so they can be an inspiration for rest of the females. इस साल हमने फिर से अभी business idea competition launch किया है, which we are extending the dates. 5th को हमारी last date थी, but we are due to COVID we decided to have a competition by the end of this month, जो अभी तक tentative date है. inshallah we'll have it. तो उसका तरीका ये है कि any business you have, female जो हमारे यहाँ हैं जो बैठे हुए हैं, if you have female in your family, your friends or your like surroundings जो जिनका कोई business है and they want some financial stability या फिर कहीं पे recognition. यहाँ पे मैं हर दफा ये कहती हूँ कि जब हम business competition announce करते हैं, it's not just one competition जहाँ पे आप register होके either you win or you don't win. It's that people who get to know about your business, क्योंकि इस platform पे वैसे लोग आते हैं who are interested in investing and interested in getting them on board with themselves. तो वो चीज don't get like उस पे focus ना रहे कि बस पैसे नहीं जीते तो then it's gone. It's not like that. So जो females इनका business है either in the idea stage, अगर idea stage पे भी है then it's also fine. वो भी आप लोग आके अपना idea present करें.
जितने जो हमारे रेंज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आप कोई फीमेल विद डिसेबिलिटी है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। आप उधर अप्लाई करें, देयर इज अ लिंक, गूगल फॉर्म पे आपका लिंक है, दैट इज वेरी बेसिक फॉर्म। वहाँ पे आप अपना आइडिया सब कुछ वो डाटा एंटर करें, आपका डाटा हमारे पास आएगा, देन यू आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द कंपटीशन। वहाँ से हम आप लोगों की वही मेंटोरिंग सेशंस होंगे, आप लोगों के साथ वर्कशॉप्स होंगे टू गेट टू गिव यू अ लिटिल पॉलिश, यू नो, थोड़ा सा पॉलिश किया जाएगा आपके आइडिया को। एंड फिर उसके कुछ शॉर्ट लिस्टिंग रूल्स हैं, उसमें जजेस के सामने आपको प्रेजेंट करके उसको आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। देन ऑन द मेन इवेंट वी हैव अराउंड टॉप 10 स्टार्टअप्स जो कि अपना आइडिया और भी डिटेल में जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट द कंपटीशन इज अबाउट। एंड आई से कि बेशक आपके जहन में एक छोटा सा ख्याल भी है कि लेट्स हैव द नो आइडियाज स्मॉल, तो सिंपल सी बात है, छोटा सा ख्याल भी है दैट यू थिंक दैट इट कैन बी अ बिजनेस, या तो do participate। हम उस we have panel of judges, we have panel of mentors जो कि आपके उस आइडिया को enhance और अच्छा कर सकते हैं। maybe it gives it give your idea good shape, तो do apply for it। सबा, एक क्वेश्चन है सुंदस का, जो कि हमारी पार्टिसिपेंट है, कि ये इवेंट किस किस यूनिवर्सिटी में होता है और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा इस पे इनको बता दें कि इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज हमारा पार्ट होती हैं, थोड़ा सा बता दें। जी, इवेंट इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनीवन। सिर्फ एक शर्त हमने रखी है थ्रू आउट दिस 2 years एंड फॉर दिस ईयर नाउ एज वेल, कि आप फीमेल होना जरूरी है। अदर देन दैट देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि आप जो है ना, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन लिमिट, देयर इज नो बिजनेस लिमिट कि आप कोई छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, आइडिया स्टेज, डेवलप स्टेज, एनी काइंड ऑफ स्टेज यू आर एट एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें। बस एक शर्त है कि आप फीमेल हो और फीमेल लेड बिजनेस हो। बेटर इट इज बेटर इफ यू हैव 3 participants, female participant। if not, then it's also fine if you have male members in your team, that's totally fine। but आप खुद एक जो आपका स्टार्टअप है वो फीमेल लेड होना चाहिए, this is the only शर्त। अगर हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट किसी का क्वेश्चंस हो तो हम उनसे ज़रा क्वेश्चंस ले लें, सो दे कैन आस्क वेदर इन मैसेजेस और माइक पे अगर वो खुद कह दें। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। I am also an executive council member of YPDC SN Sayyedzada, और सबसे पहले तो मैं इस फ्रूटफुल डिस्कशन पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आहद को और अनम को। और मेरा सवाल असद भाई से है कि थ्रू आउट आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ या अपने क्लासमेट से या जूनियर से या सीनियर से, सबसे ज्यादा रुझान उनका पब्लिक सेक्टर के जॉब्स पर होता है कि मैं CSS ऑफिसर कैसे बनूंगा, मैं PMS में कैसे अप्लाई करूंगा, या मैं मतलब मुल्क और कौम का नाम रोशन कैसे करूंगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। तो इस प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर है, इसको फ्लरिश करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर सकती है? थैंक यू। Thank you, Ahsan Sayyedzada. I'm glad to see you all my juniors. I don't come to university, but I'm mostly with my juniors. I'm connected with social media, तो मैं आप सबकी एक्टिविटीज देख रहा होता हूँ। I'm really glad कि आप लोग जो हैं अपने अपने सेक्टर्स में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Coming towards your question, सर, आपका जो क्वेश्चन है, it's not 2020 का क्वेश्चन। If I rewind my life in 2010, the same approach was following in this Pakistan. और अगर मैं अपनी लाइफ को 10 साल अगर मेरी जिंदगी रही 2030 में ले जाऊं, अगर मैं जिंदा रहा, तो यही क्वेश्चन हम दोबारा ये जंग लड़ रहे होंगे। Why everybody is up to सरकारी जॉब्स? मैं CSS ऑफिसर बनना और ये चीजें बनना, तो सर अगर कोई बन सकता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप CSS का पासिंग रेट देखें तो इट्स जस्ट 2% और 1%। तो एवरीबडी कैन नॉट बी गो टू CSS ऑफिसर एंड PMS ऑफिसर। सरकार का जी ये है कि जी कॉन्सेप्ट जिससे मुझे बड़ा ज़्यादा इख्तिलाफ है सरकारी कॉन्सेप्ट से, कि सरकार में जो है, वेरी सॉरी टू से, वेरी सॉरी, माय फादर यूज्ड टू बी अ sarkari servant, my brother works as a sarkari servant, there are lots of sarkari servant in my family, there are zero productivity in sarkari offices, and trust me, when I say zero, it's ZERO or ZERO, zero productivity in sarkari service, because वहाँ पे काम का कल्चर ही नहीं है। वहाँ पे जो काम के कल्चर है, that's old minded, that's
प्रीवियसली, और अगर मेरे जैसा आप जैसा बंदा भी वहां पर जाकर बैठ जाएगा तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, हम लोग भी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के सेक्टर पे चले जाएंगे। सरकार जी, दो चीजें सरकारी जॉब में थी हैं जी, कि एक आपकी कोई आपको नौकरी से निकाल नहीं सकता, ठीक है, परमानेंट जॉब है। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आप रिटायर हो गए और या आप मर गए तो आपके बाद जो है आपकी फैमिली को या आपको जो है पेंशन जो है वो चीज मिलती रहेगी, विच आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। क्योंकि अगर आजकल की 2020 की सरकारी जॉब्स को आप देखते हैं, मैं CSS PMS की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल सरकारी 17 ग्रेड 18 ग्रेड, तो मुझे नहीं पता व्हाई पीपल आर स्टिल गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब जब उनकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर के बराबर ही है। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी सैलरीज जो हैं उनके बराबर ही समहाउ कर दी है, ठीक है। एक 18 ग्रेड का अफसर की अगर आप बेसिक पे जितनी वो लेता है विदाउट टैक्सेस अगर आप देखें, सो इट्स नॉट मोर देन 58,000 रुपीज। एंड इफ यू आर अ मिडिल लेवल मैनेजर इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन अर्न 65,000 70,000 रुपीज एज अ, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मुनाफा है। सिर्फ एक चीज नहीं है कि जी कल को अगर मेरा कोई काम खराब हो गया तो मुझे कोई निकाल देगा, तो जी आप ऐसा काम करें ही मत कि आपको कोई निकाले, ठीक है। मेरा एक रूल है हमेशा, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं, मैं हमेशा एक कहता हूं, चाहे आप किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी भी उस इंसान को और इस जॉब को अपना आदी मत बनाए। उस अपना आदी मत बनाए, बल्कि खुद, सॉरी, अपने आप को उस चीज का आदी मत बनाए, उस काम को जो है अपना आदी बनाए, ठीक है। दैट, ये अगर इस बात पे आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी बड़े लेवल पे आसान हो सकती है। देखिए, मैं ग्रेजुएट्स की उस टाइम मैंने बात की और आपकी बात से मैं उसको रिलेट करूंगा प्राइवेट सेक्टर से। अब लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स। हम जी ग्रेजुएट होते हैं समहाउ जी, 2020 में मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ विद अ BBA डिग्री फ्रॉम आई एम साइंसेस, ठीक है, एंड लेट्स टेक इट, आई हैव डन इट इन मार्केटिंग। अब नाउ इफ आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट इन मीन्स नॉट, मेरा GPA था जी 3, और मैंने काफी ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में, मैंने YPTC का मैं वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ, मैं इसका रह चुका हूँ, मैंने बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किए, मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए, एंड आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। सो जब आप जॉब में जाते हैं ना प्राइवेट सेक्टर में, तो ये पार्ट आपके GPA के ऊपर लिटरली सेंस में बिछ जाता है। बिछना समझते हैं आप, बिछना, कि एक चीज बिछ जाती है, वहां पर आपका GPA काउंट नहीं होता, फिर ये सारी चीजें आपकी काउंट होती हैं कि हाउ मच सोशल यू आर, हाउ मच यू आर गुड इन प्रेजेंटिंग, और वो सारी चीजें। तो मैं अगर बड़ा अच्छा मैंने काम किया हुआ है ना, तो मैं आपको पेशावर की मार्केट में बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे और आउटस्पोकन है आप, तो बिटवीन 30 to 35 you will start, between 30 to 35 if you are good, if you are a general, अच्छा बस जी नॉर्मल सा है, तो यू विल स्टार्ट बिटवीन, आई वुड से 24 25 28,000 रुपीज पे जो है आप स्टार्ट करेंगे। दिस द रियलिटी, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप लगाएं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो साल का अगर बहुत अच्छा काम करें तो 5,000 से 7,000 का रेज एक्सपेक्ट करें आप, ठीक है। 5,000 से 7,000 का रेज एक्सपेक्ट करें, अगेन जो कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 1,200 रुपए जो है मेरे भाई की 17 ग्रेड में रहते हुए पिछले साल तनख्वाह ज्यादा हुई थी, बट मेरी जो है 8,000 रुपए तनख्वाह ज्यादा हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। तो वहां पर जो है ये चीज आपकी रियलिटी आप एक्सेप्ट करें, और आप फिर 10 साल काम करेंगे, 10 साल के बाद जाकर जो है अगर 5-5 हजार की मैं सैलरी ज्यादा कर रहा हूँ तो कोई एक अच्छी सैलरी बनेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर 10 साल बाद आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो वो इस टाइम के जो है, इस टाइम के बहुत से कम पैसों के बराबर है, क्योंकि उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी। प्राइवेट क्या कर सकते हैं जी, मेरे ख्याल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो, आई एम साइंसेज इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट जो कि लिटरल सेंस में थोड़ा बहुत जो है कैरियर काउंसलिंग और उन चीजों पे काम कर रहा है। अदर यूनिवर्सिटीज दे आर कंप्लीटली डाउन इन इट, कंप्लीटली डाउन इन इट। आई विल हैव सम ऑफ द सेशन इन दैट, के मेरे जैसा बंदा, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता, बट आई ऑलवेज टॉक टू डॉक्टर नुमान एंड डॉक्टर सुहेल, एंड दे वांट मी टू कम एंड टॉक टू दिस ग्रेजुएट्स अबाउट दिस प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज आई एम इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। मुझे अगर कोई सरकारी नौकरी अभी ऑफर करता है तो आई वोंट गो फॉर अ सरकारी नौकरी, बिकॉज आई एम यूज टू वर्क, आई एम यूज टू प्रोडक्टिविटी, एंड आई एम यूज टू कि आप काम किस तरीके से करते हैं। बेसिक काम आपका काम के साथ होना चाहिए कि आपने काम किस तरीके से करना है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा प्राइवेट एंटिटीज के साथ जो है कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सो दैट थोड़ा सा ग्रेजुएट्स में भी जो है रियलिटी का एस्पेक्ट बन जाए, कि हम ज्यादातर चांसेस यही है कि आफ्टर द ग्रेजुएशन विल बी गोइंग फॉर अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। सरकार अगर किसी को मिलती है, सरकारी जॉब मिलती है, व्हाई नॉट, एवरीबॉडी वुड वांट दैट, अ गुड जॉब, अ परमानेंट जॉब, बट 80% जो है यू विल बी गोइंग टू प्राइवेट सेक्टर्स, यू विल बी गोइंग टू प्राइवेट सेक्टर्स। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटीज। और प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप अपने बिजनेस को काम दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, यू आर द किंग, यू आर द किंग और यू आर द क्वीन, अनटिल एंड अनलेस यू आर कंप्लीटली डाउन। सो दिस माइंडसेट हैज टू बी चेंज, और थोड़ा सा कोलैबोरेट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर्स को और एकेडेमिया को।
Sir Asad आपसे एक क्वेश्चन है नादिया कुरैशी का कि what Asad would challenges like do to. जी That's fine. Let's continue the question. Nadia Qureshi का question है sir Asad से कि what challenges do an entrepreneur are facing today recent 2020? सर सबसे बड़ा चैलेंज 2020 की अगर मैं बात करता हूँ एंड वी आर सिटिंग ऑन लाइक इट्स 6 दिसंबर, सबसे बड़ा चैलेंज है जी आपका जिसको कहते हैं CORONA, कोविड-19। सबसे बड़ा चैलेंज कोविड जो है एंटरप्रेन्योर्स आजकल के हर कोई, इट्स नॉट अबाउट कोविड, इट्स नॉट अबाउट समथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज फेसिंग दिस चैलेंज। ठीक हो गया, एंड इट्स नॉट समथिंग न्यू। 1 साल से हम इस चीज़ को गुजार रहे हैं। कोविड ने अपनी बर्थडे जो है चाइना में गुजार ली है। हम लोग जो है इट्स बिन 8-9 मंथ जो कि कोविड को बर्दाश्त कर रहे हैं। नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज कांस्टेंट। Sabha would laugh on this thing, but from the last 2 months हम जो एक हफ्ता चीज प्लान करते हैं नेक्स्ट हफ्ते वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, ठीक है। हम एक चीज प्लान करते हैं, वी टॉक, वी ब्रेनस्टॉर्म, सबा ये करते हैं, ठीक है सर ये करते हैं, इसको इस तरीके से चेंज कर दे, वी डन। जब हम उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक कोविड आ जाता है, नेक्स्ट वीक लॉकडाउन आ जाता है, नेक्स्ट वीक जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं उनका कोई डाउनफॉल आ जाता है, उनका कोई मसला चला जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज अगेन कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंट नहीं रह सक रहे। उसमें स्टार्टअप्स का कसूर भी नहीं है, बिकॉज अगर एक 24 साल की 23 साल की उम्र में एक लड़का या लड़की स्टार्टअप की तरफ जा रहा है और वो जॉब की तरफ नहीं जा रहा, तो जॉब की अगर लेट्स से उसकी 50,000 तनख्वाह है तो वो नहीं आ रही। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली घर में आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब ये ग्रेजुएट हो चुका है, इसने कुछ लेकर आना है, इसने कुछ कमाना है, इसने सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो उस चीज़ में आपका जो इशू है और जो आपका बेसिकली जो तरीका है वो हो जाता है। ऑन फ्राइडे मी एंड सबा वर सिटिंग इन ऑफिस एंड यही कोविड की एक सिचुएशन आ गई थी, तो एक स्टार्टअप हमारे पास आया। दे वर वेरी सैड कि उनका एक मतलब दे वर 4 पीपल इन द ऑफिस, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने कहा कि 2 बंदे आएंगे, 2 बंदे नहीं आएंगे। दे वर लाइक माय बिजनेस इज लाइक शट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको सिर्फ एक ही बात की है, मैंने कहा मास्क पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार अपने स्टार्टअप को जो है मास्क पहना दो। ठीक है, अपने स्टार्टअप को मास्क इसलिए पहना दो कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। देयर इज नथिंग आई वुड से मसला जिसको हम मसला कहते हैं ना, हर मसले में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो कोविड से आपने अपने लिए एक जो सबसे अच्छी चीज है कि यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टाइम फॉर योर स्टार्टअप, यू हैव टाइम टू ग्रूम योर सेल्फ, यू हैव टाइम टू लिटरली लर्न न्यू स्किल्स। एंड इस टाइम को अगर आपने जो है अगर थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट ना किया, कोई नई चीज आपने ना सीखी, तो उसमें आप जो है बहुत ज्यादा लैग करेंगे। एंड आई वुड वांट सबा टू बेसिकली थोड़ा सा इसको एलैबोरेट हम मेरे साथ करें, बिकॉज शी इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज प्रोसेसेस एंड वी आर वर्किंग ऑन दीज मिनी प्रोजेक्ट्स। इनकंसिस्टेंस अगर आ रही है तो वो भी कोविड की वजह से आ रही है, और अगर वो अपने एंड से कुछ चैलेंजेस बताना चाहें जो कि 2020 में स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं, बिकॉज शी इज सिटिंग इन इंक्यूबेशन सेंटर, शी इज वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप एज वेल, सो आई वुड वांट सबा टू basically continue. Excuse me, ma'am. I have a question. Yes, Sutas. मैम अगर हमारे पास एक स्टार्टअप प्लान है, वो हम लोग यहाँ पे भी प्रेजेंट कर रहे हैं, मीनवाइल हम उसी प्लान को किसी और जगह भी लाइक अपनी यूनिवर्सिटी में या कहीं पे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इट वोंट बी अ इशू? No, it's fine, totally fine. Okay. You can apply. We want more than one plans. Like हम लोगों ने जब से as sir said के COVID is the best time for us, तो हम लोगों ने ना काफी सारे plans थे, startup plans, जो कि हम लोगों ने किए थे, लेकिन first of all as because we are students, तो हमारे पास इतना ज्यादा वो नहीं था कि हम उनको आगे commercialize कर सकते। Secondly, we won't have a good team. Like अगर हमारे पास software या हम लोग engineering के students हैं, तो engineering का काम हम अच्छे से कर भी सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कोई उसी में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की चीज है वो हम लोग नहीं कर पा रहे। और ऑन द सेम टाइम क्योंकि हम अगर अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो हम किसी को बताते हैं तो दे फर्स्ट डिमांड फॉर द मनी, लाइक बिफोर दैट हमें जो है वो पूरी की पूरी हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ा एंड वी डोंट नो अबाउट दैट इसको कल मतलब ये कमर्शलाइज होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम अपना प्लान दे दें और उसमें जितना खुद ourselves contribute कर सके, तो बाकी क्या हेल्प आउट मिलेगी हमें? अच्छा, since there is no limitation on number of registration you want to do for businesses, वो मेरा first question, आपके 2 आइडियाज हैं, 3 आइडियाज हैं, आप सबके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हो।
दूसरी बात आपने जो की कि कोई बंदा सॉफ्टवेयर में हेल्प कर रहा है, कोई हार्डवेयर में हेल्प कर रहा है, एंड देन दे आस्क फॉर चार्जेस एंड ऑल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिजनेस स्टूडेंट्स बैठे होंगे, सबसे पहले आपको जो है ना एक बिजनेस प्लान रेडी करना है. डोंट गेट इनटू एग्जीक्यूशन फर्स्ट. सबसे पहले आपको सारे अपना होमवर्क करो बैठ के, क्या कुछ किस तरह होगा, आपने क्या रॉ मटेरियल अगर आपका बिजनेस उससे रिलेटेड है या कोई भी इस तरह की जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो पहले उसमें आइडेंटिफाई करो. जब आप इस कंपटीशन में फॉर एग्जांपल आप पार्ट लेते हो तो आपका जो आप जब आओगे आप प्रेजेंट करोगे, आपसे उस वक्त एग्जीक्यूशन नहीं मांगी जाएगी, आपसे आउटकम्स मांगे जाएंगे या फिर आपके आइडिया के पॉसिबल आउटकम्स पूछे जाएंगे कि आपने जो ये सोचा है आपको क्या लगता है इससे क्या पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है या आप क्या चीज अचीव करना चाह रहे हो. अगर आपका रनिंग स्टार्टअप है तो आप अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटकम्स है वो प्रेजेंट करो. अगर नहीं देन पॉसिबल आउटकम्स बताओगे कि क्या होगा. अच्छा, जहां तक इन्वेस्टमेंट, जहां पैसों की बात आती कि पहले पैसे, सो दैट इज जब आप किसी और की सर्विसेज एक्वायर करते हो तो दे विल डेफिनेटली चार्ज यू फॉर इट. आपने वो चीज करनी. फाइंड अ वे टू फर्स्ट डू योर होमवर्क, चाहे आप फ्रेंड्स की मदद के साथ करते हो या फिर यू वांट टू रीच आउट टू अस, हमारे थ्रू आप करते हो. स्टार्ट गोइंग टू और अटेंडिंग सेशंस जहां पे आपको इस चीज की हेल्प मिल सके. हाउ टू पॉलिश योर आइडिया फर्स्ट. सबसे पहली बात जो हमारी तरफ हम लोग ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लान, तो हम लोग उसका सारा होमवर्क या जो चीजें आप बता रही है ना, हम ये सारा कुछ कर चुके भी हैं. मतलब हम लोगों ने वो सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब हम लोग जो मतलब उसका पहले वाला लाइक अगर हम लोगों ने जो चीज बनाना चाह रहे हैं उसके लिए पहले के लिए हमें जो काम चाहिए था उसमें हमें ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी. अब उसमें क्या है कि मतलब हम लोग पहले बनाएंगे एक दो, उसके बाद ही हमें पता चलेगा ना कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है. तो उसके लिए भी हमें चाहिए था. तो वहां पे आके ना ये फ्लॉप हो गया. बाकी उसके मतलब हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या किस टाइम तक चाहिए, अच्छा, क्या वो सारा कुछ हमने किया. वो that Like, we Sundar, have for a that yeah. for that Sundar, you have to have a very good goodwill with the people around you कि जिसके साथ आप ट्रायल वर्जन में ले लो. फर्स्ट ये कर सकते हो आप कि कर सकते हो आप कि जिससे भी आप वो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसी चीज आप साइन इट विद देम थोड़ा सा उनको ताकि भी वो आपके कुछ साथ आए ऐड एंड करते लेट्स हैं ना. हाँ इंक्लूड कर दो अपने बिजनेस में कि अगर ये चल पड़ता है देन वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट. हम इसको आगे एक साथ एज अ टीम लेके जा सकते हैं. क्योंकि अगर आप इस तरह फॉर जस्ट वन थिंग आप किसी को अक्वायर करते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, दे विल चार्ज यू फॉर योर सर्विसेज. इवन अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी अपने आप को इंक्यूबेट करते हो, आपका बिजनेस आता है, आप ऐसी सर्विसेज के लिए दे आर गिविंग यू सर्विसेज, यू हैव टू वैल्यू दैट नो मैटर व्हाट. तो वहां पे आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो जाएगी. दिस इज वेयर योर बिजनेस मनी, जहां पे स्टार्ट में हम बात करते हैं कि बिजनेस फर्स्ट डे से आपको लाखों रुपए जीत के नहीं, मतलब इट कैन नॉट अर्न यू $1,000 सॉरी ₹1,000 या 1 लाख रुपीस आपको 10 से नहीं आ जाएंगे कि आपने इधर बिजनेस स्टार्ट किया और आपको जो है ना नेक्स्ट मंथ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है. बिगिनिंग में यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, योर efforts, your money, बहुत सी चीजें डाली. but this is what it is about. ये job the Sundas, software either engage that person. don't call your idea a flop idea. Is nothing flop. These all things are learnings basically. ठीक है. Yes. अगर आपने अपने आइडिया को फ्लॉप कह दिया, ट्रस्ट मी, नॉट अ सिंगल इन्वेस्टर इन ऑल ओवर. तो अगर आप बिल गेट्स से भी आपको मिलने का मौका मिल गया, अगर आपने खुद ही अपने आइडिया को फ्लॉप कह दिया, नो, कोई भी आइडिया फ्लॉप नहीं होता क्योंकि वो आइडिया इज समथिंग आपकी चीज है. इट्स योर ब्रेन चाइल्ड. ठीक है. ऑल द थिंग्स, अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ जी आपके आइडिया में ये मसला है, समथिंग लाइक दैट, तो दीज ऑल आर लर्निंग्स. ठीक है. जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज सही भी हो. ठीक है. यू हैव टू बेसिकली सी एंड एनालाइज द सिचुएशन. दैट्स व्हाई लोग कहते हैं कि we believe in a thing that the idea we're having is not going to be flop just because हमें पता है अब तक ये चीज पाकिस्तान में आई भी नहीं है. हम लोगों ने पहले इनफैक्ट हमें खुद जब चाहिए थी we search for it but it doesn't exist in Pakistan, not even in South America or like that. वहाँ पे वो चीज है लेकिन वो पाकिस्तान तक आते तक ना उसका डबल ट्रिपल रेट बन जाता है. ठीक है. तो we guys just sit on a thing कि हम लोग इसको खुद से क्यों नहीं कर सकते. तो हम जितने रेट में वो अमेरिका में इस टाइम पे है उसी मतलब उससे कम में हम उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. लाइक
लेकिन हम लोगों को मतलब ना उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले का जो वो प्रोसेस है उसमें जरूरत है, Sundas, like it's not Sundas, हाँ, Sundas, I would sum up this because और questions भी हमारे पास आ रहे हैं. You can contact us after this and we'll surely help you out. The only solution to your problem is कि you have to identify the right person जो कि जैसे सबा ने आपको कहा है, Yeah. जो कि initially आपके साथ जो है मिलकर जो है इस प्रोटोटाइप को basically develop करेगा. And there are people, we have contacts in industry, तो आप अपना idea जो भी आप करना चाह रहे हो, you can share it with Ms. Sabha as well. और मेरे साथ कर दो, मैं सबा के साथ आप कर दो, and we'll try to link you up with anyone from the industry जो कि आपको इस प्रोटोटाइप में हेल्प कर देगा. एंड मे बी द थिंग इज कि यू हैव टू पिच इट लाइक दैट कि कोई बंदा आपके साथ फ्री में काम करे, क्योंकि फ्री में जब काम करते हो ना तो इट्स यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बोथ साइड. जो कि आपके पैसे में अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मैं क्यों 1 लाख रुपए सुंदस को दे रहा हूँ. तो सुंदस हैज टू प्रूव दिस थिंग कि 1 लाख रुपए मैं आपको दे रही सर आप मुझे 1 लाख रुपए दें, एंड आफ्टर 1 year this 1 lakh will be converted into 4 lakh rupees, and I assure you that this will be converted into 4 lakh rupees. ठीक है, तो उन चीजों में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा. सो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड इंशाल्लाह विल ट्राई एंड विल सी कि किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं. Okay, And sure. apply for this competition. Apply for the competition. Maybe you win Yeah. that prize money, and you can invest that money into your business. Okay, thank you. Welcome. असद साहब, यहाँ मैं एक क्वेश्चन मेंशन करना चाहूँगा. नादिया कुरैशी ने आपसे पूछा है कि टाइमिंग के बारे में, कि प्राइवेट सेक्टर में मतलब 8 आवर्स काम नहीं करना होता, इट्स ऑल अबाउट 24 आवर्स. वो बात करिए अपनी फर्म की, लेट्स सपोज उन्होंने एग्जांपल दिए. सो फीमेल के लिए फिर इतना एक हेक्टिक वर्क स्ट्रक्चर में काम करना इम्पॉसिबल है, तो इसको मैनेज करना किस तरह होगा एंटरप्रेन्योरशिप में? सर बेसिकली जो एसेंस डिस्कस सर मैं आपको इसको मैडम को भी और सर आपको भी मैं इस बात का जवाब इस तरीके से दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नथिंग इज इम्पॉसिबल. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. ठीक है, अगर मैं जितना टाइम इस बिजनेस को दे रहा हूँ, मिस सबा शी एज अ फैमिली माशाल्लाह. ठीक है, मैं सिंगल हूँ बट शी एज अ फैमिली, वो अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के साथ मैनेज कर रही हैं. शी गो आउट विद मी फॉर द मीटिंग्स, हम मीटिंग्स को भी कंडक्ट करते हैं, हम काम भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करते हैं. मैं अपनी फैमिली को भी देखता हूँ, वो अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हैं. एंड व्हाई एंड हाउ वी आर डूइंग इट कि वी हैव प्रायोरिटाइज एवरीथिंग. ठीक है, किसी टाइम पे काम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसी टाइम पे फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे. देयर इज नेवर 50-50. रिमाइंड यू, देयर इज नेवर 50-50. यू हैव टू कीप अ बैलेंस. समटाइम्स यू हैव टू पुट 70% एंड समटाइम्स यू हैव टू पुट 30% इन दैट. इट्स ऑलवेज एंड यू हैव टू कीप द बैलेंस कि कभी आपने इस चीज को ऊपर लेके गए हो, कभी इस चीज को नीचे लेके गए हो. सो इट्स लाइक प्रायोरिटी. अगर प्रायोरिटी है, देखें अभी का हार्डवर्क, अगर आपको लगता है कि बिजनेस में आपके 20 घंटे 24 घंटे में से लग रहे हैं, एंड इफ यू थिंक, थोड़ा सा इसको वजन करके देख लो कि ये 20 घंटे ये वर्थ है. डिपेंड करता है कि अगले 5 साल के बाद जो है आपको ये चीज कोई फायदा देगी, देन दिस 20 आवर्स इज वर्थ इट. जस्ट काउंट योरसेल्फ, जस्ट सी के हो क्या रहा है बिजनेस में, कर क्या रहे हो आप लोग बिजनेस में, ये चीज आपको फायदा देगी कि नहीं देगी. इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड बैलेंस. ठीक है, यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन मैनेजिंग टाइम, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल. जस्ट प्रायोरिटाइज करें कि ये मेरी प्रायोरिटी है. अगर आपका बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है तो, और आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, समथिंग लाइक दैट, तो क्रिएट अ बैलेंस. क्रिएट अ बैलेंस. किसी चीज को कभी कम रखोगे, किसी चीज को ऊपर रखोगे, एंड दैट्स द ओनली वे ऑफ डूइंग इट. इसके अलावा we all have our personal life, we all have our professional life, we all have ups, we all have downs. Sometimes we are very happy, sometimes we are very depressing, sometimes we are laughing and sometimes we are crying. These all parts are emotions and we have to live with that. There is nothing कोई जिस तरह का नहीं. just prioritize करें, priority रखें अपनी, and There just is no clear what you are doing. standard. Yes, there is no standard way. There is no standard way of doing anything. You need to find a perfect balance, or even not imperfect balance, जहाँ पे आप कभी आप job को ज़्यादा priority देते हो, कहीं आप business को ज़्यादा. And the thing is कि job is something that is totally depending on our own willpower. Business job हमसे हमारा टाइम निकाल लेती है, but business is something that we have to give time ourselves. तो बेशक आप 20 hours जॉब को दे रहे हो, but 4 hours make sure कि उसमें आधा घंटा अपने बिजनेस को दे दो, because that is totally for our own selves. मैम और मिस्टर असद, मैं आपसे एक क्वेश्चन, मेरा अपना क्वेश्चन है कि हाउ टू नो कि हमारे ये जो आइडिया है, क्योंकि हम तो कोई भी आइडिया कभी भी अपने आप सोच सकते हैं और उसको बिल्ड अप कर सकते हैं अपने ब्रेन में, वो कुकू
एंड जो उसको कहते हैं कि हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल होगा, तो हाउ विल वी नो कि ये मार्केट डिमांड भी हो गया, ये सक्सेसफुल भी होगा, ये मतलब हम उसको प्रैक्टिकली हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जिसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं, या हमारे जैसे सुंदस ने बोला था कि इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, और अगर हम उसको लाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा हमारा। मतलब शायद वो डिमांड ही ना हो हमारा, इसलिए यहाँ नहीं है अवेलेबल। सो हाउ टू नो कि हमारी जो बिजनेस आइडिया है ये हमारी मार्केट डिमांड में आएगा, जैसे ऐसे ना हो कि हम कुछ सोच रहे हैं वो हमारे लोगों को चाहिए नहीं। सो ये ज़रा हम सब के लिए हम बता दें कि अगर हम आइडियाज़ बनाएं भी और अगर सोचें भी, तो वो कैसे हम अपने पाकिस्तान के सोसाइटी के साथ फिट करें और रिलेट करें। Asad, would you like to go first? या श्योर अनम, आपने बहुत से क्वेश्चंस एक साथ जो है आपने कर दिए। समथिंग इज, सबसे पहली बात जो अच्छी बात ये होती है कि आइडिया आपके माइंड में आ रहा है। सबा, इफ यू कैन करेक्ट मी, शी इज द वन वी कॉल हर एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। ओके, या He called herself या an accidental तो entrepreneur. तो हम आपको हम बहुत सी जगहों पर अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो वो हमारे साथ जो छोटे से वो बात रही थी, हम काफ़ी ज़्यादा तो उसको रिलेट करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट्स समथिंग, आइडिया तो आ जाता है जी कि मेरे जहन में आइडिया है कि ये चीज़ मैंने, लेट्स से हेयर ऑयल की बात कर लेते हैं। अभी हेयर ऑयल जो है एक चीज़ की है, उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं मार्केट सर्वे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूंगा अपने स्टार्टअप के साथ, जो कि मैंने छोड़ दिया था वेरी अनफॉर्चुनेटली, विच वाज अ गुड आइडिया एंड एस्टैब्लिश्ड आइडिया इन द मार्केट। इट वाज द नेम ऑफ पे खबर स्पाइस। दैट वाज अ होममेड विनेगर पिकल, जो कि मेरा आइडिया था। आई स्टार्टेड इट इन दिस आइम साइंसेज व्हेन आई वाज इंक्यूबेटेड इन एडीसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। आई स्टार्टेड बैक इन 2015 एंड लेफ्ट इट इन 2018 बिकॉज आई गॉट कमिटेड टू दिस जॉब सेक्टर। तो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस समझाता हूँ। इस तरह था, सर्दी की शामें थी, मैं लेटा हुआ था और ये आइडिया मेरे माइंड में आ गया क्योंकि ये चीज़ मेरे पास थी। आई जस्ट वेंट आउटसाइड, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स लेके आया एंड आई गेव इट अ ट्राई। 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब वो चीज़ तैयार हुई, मैंने घर वालों को वो टेस्ट कराया, इट टेस्ट वेरी गुड। बस माइंड में वो क्लिक कर गई, इस चीज़ को बिजनेस बनाना है। नाउ अब आइडिया तो है, अब कोई लेगा नहीं लेगा जो आपके क्वेश्चन है। व्हाट आई हैव डन, मैं दूसरी बार गया, इंग्रेडिएंट्स लेके आया और मैंने उस चीज़ को फिर बनाया ज़्यादा क्वांटिटी में, और छोटी-छोटी बॉटल्स उसकी मैंने किया एंड व्हेन इट वाज रेडी आई वेंट टू आइम साइंसेज। और जितने टीचर्स ने मुझे उस टाइम पढ़ाया हुआ था, आई वाज इन 4th सेमेस्टर और समथिंग, मैंने सबको जो है वो बॉटल्स फ्री में दे दी। मैंने कहा सर दिस इज समथिंग आई हैव इनिशिएटेड, जस्ट गो हैव अ ट्राई और मुझे इसका फीडबैक दें। ट्रस्ट मी, दे ट्राइड एंड सब ने एक दिन में वो सारी की सारी बोतल तुझे खत्म कर दी। नेक्स्ट डे दे स्टार्टेड गिविंग मी ऑर्डर्स कि आप फैमिली पैक मुझे दे दें, ये दे दें। तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव टू गो फॉर अ मार्केट सर्वे, अ बिट ऑफ इट, यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड, यू हैव टू शेयर इट विद योर फैमिली कि यार ये आइडिया है, तुम मुझसे लोगे। और सबसे बड़ी बात, अनम एंड ऑल द ग्रेजुएट्स एंड ऑल द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और लिसनिंग टू मी, जब भी कोई बिजनेस करो, अनम बन के बिजनेस मत करो। अगर अनम की कस्टमर है सबा, तो सबा के पर्सपेक्टिव में जब खुद को रखोगी कि अगर सबा ने मेरा जो बिजनेस ये प्रोडक्ट लेना है, तो सबा किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेगी, वो पैकेजिंग पे जाएगी, वो हेयर ऑयलिंग पे जाएगी, वो जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी पे जाएगी, वो जो है ये कितना हाथ पे चिपक रहा है इस चीज पे जाएगी, कितने भी डायनामिक्स हैं वो इस चीज पर जाएगी। तो हमेशा ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ कस्टमर्स पर्सपेक्टिव कि जो आपका ये प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रहा है या कर रही है, वो क्यों लेगा। अगर आप इस चीज को सोच में रख के अपना बिजनेस आइडिया को आगे लेकर जाओगे, तो इट विल नेवर फेल, इट विल कीप ऑन लर्निंग स्टेज। ओवर टू यू सबा। वैसे तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। मैं थोड़ा, मेरे जहन में अभी चल रहा था क्योंकि वी ऑल गो आउट एंड यू नो ईट आउटसाइड, फास्ट फूड हमारा यहाँ पे, हमारे पास करीब ही बर्गर किंग खुला था, which is now turned into a Banu बीफ something, पुलाव। I forgot the name. तो सफायर में यहाँ पे वेस्टर्न क्लोथ्स आए थे, which has like क्या बीफ पुलाव, now western clothes are gone. तो द थिंग इज, फर्स्ट पहले ये सोचना कि हम जो आइडिया प्रेजेंट करें, एक तो थोड़ा सा हम कल्चरली थोड़ा इस चीज को देखते हैं। बहुत से स्टार्टअप्स जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में स्टार्ट किए हैं एंड इट इज गोइंग रियली वेल, बट वही स्टार्टअप अगर हम पेशावर में आके करते हैं, द डेमोग्राफिक्स ऑफ पेशावर, द कल्चर ऑफ पेशावर, नो मैटर व्हाट वी डू, देयर आर फ्यू लिमिटेशंस and few good things about it. ऐसे कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे। There are few things that we have to look into and फिर accordingly उसमें apply करते हैं। इस्लामाबाद की फीमेल की मैं बात करूँ, कराची लाहौर की फीमेल की मैं बात करूँ, उनकी लाइकिंग और यहाँ पेशावर की फीमेल्स की लाइकिंग में देयर इज अ डिफरेंस।
तो मैं ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट ही क्यों करूं जिसका मुझे पता हो कि यहाँ के वहाँ मतलब I can play with it. मैं अब this दुपट्टा is something that we all have to go with it. अगर मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ which relates to a beautiful embroidered दुपट्टास या कोई embellishments मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे पता है पेशावर में there will be a 50% of female who will be interested in buying it. बट अगर ये दुपट्टा मैं इस्लामाबाद कराची में करूँ तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई 20% females will be interested कि हाँ ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं. There are very few जो कि इस कल्चर की तरफ मतलब it's about the place where you're doing. तो ये चीज जहन में जरूर रखो. The market survey that Asad talked about कि every idea is good but you have to change it according to the place. Same idea, same चीज आप हर जगह नहीं कर present कर सकते हो but you innovated according to the area that you are living in. So I think this is very important. Burger King could have been a good place, good hit हो जाता. बट पेशावर में वी हैव नहीं है ऐसा कोई कल्चर हमारे पास. और यहाँ की इट्स वेरी स्ट्रेंज. आई ऑलवेज टॉक टू असद अबाउट इट कि यहाँ पे जब हम पठान वी आर ऑल मीट ईटर्स, वी गो फॉर टिक्का पट्टे तीखे एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट जब बर्गर किंग ने मीट कबाब निकाला है तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन ईटिंग इट. व्हाई? बिकॉज वी हैव दिस माइंडसेट कि नहीं जी हमने तो अगर बर्गर खाना है तो वो चिकन बर्गर होगा या जो है ना फिश बर्गर होगा. अगर हमने स्टेक खाना है स्टेक इज अ टिपिकल मीट थिंग बट यहाँ पे चिकन स्टेक इज मोर पॉपुलर देन मीट स्टेक व्हिच इज स्ट्रेंज टू मी ऑनेस्टली स्पीकिंग. So this is, I think this is what we are faced. The problem of few businesses is that they don't really, they वो change लाना चाहते हैं but abrupt change is not going to happen. Slowly and gradually we can मैं जस्ट आपकी बातों के साथ सिर्फ ये एक एग्जांपल को कोट करना चाहूंगा कि बर्गर किंग के ऊपर ही है चाय खाना. वी ऑल सब लोग एक दफा तो जरूर चाय खाना गए होंगे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिसको पता है या जिसको नहीं पता, चाय खाना इज नाउ इट्स विद थर्ड ऑनर. ये 2 दफा बिक चुका है एंड नाउ इट्स विद द थर्ड ऑनर एंड नाउ इट्स गोइंग गुड. व्हाई इट्स गोइंग गुड? क्योंकि उन्होंने बीच में शनिवारी टिक्का, उन्होंने चिकन कढ़ाई, उन्होंने सारे जो देसी आइटम्स हैं वो इंक्लूड करा दिए. बेसिकली अगर आप इस्लामाबाद के चाय खाना में जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ही चाय खाना का है. वहां पर दिस वाज मेड फॉर 17 फ्लेवर्स टी. यहाँ पर 17 फ्लेवर्स में जो है टी अवेलेबल थी. ब्रेकफास्ट यहाँ पर अवेलेबल था. ब्रेकफास्ट में वो फ्लफी ऑमलेट एंड स्टफ लाइक दैट. बट यहाँ पर जब वो आए तो उनको देसी पराठे लॉन्च करने पड़े. थर्ड ऑनर जो है जिसने अभी किया है उसको कढ़ाई लॉन्च करनी पड़ी है, उसको देसी फूड, उसको बारबेक्यू प्लेटर लॉन्च करना पड़ा है चाय खाना में. ठीक है, तो अब जाकर वो चीज लर्न कर रही है. सो लिविंग इन पेशावर, डीलिंग बिजनेस विद पेशावर एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी 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 हार्ड. यहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है बट उनकी जेब से पैसा निकालना इट्स समथिंग जादू है. हैरी पॉटर जब तक आप नहीं होंगे तो तब तक आप चीज नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट करके बड़ा प्लाजा खड़ा कर देंगे. दिस इज व्हाट कि ये हमारी 2 नस्लें जो है इस प्लाजे को चलाएंगी. बट द थिंग इज कि उनको इनोवेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम हमें लगेगा. ओवर टू यू. अच्छा, यू राइट. सॉरी, कन्वर्सेशन में आ रहा है कि ये बर्गर किंग, अगर हम अक्सर लोग कहते हैं बर्गर किंग वाज अ बिट एक्सपेंसिव. I think Hardee's के burgers भी काफी expensive है. So it was not the money part they were cheaper than the reason of its downfall. Yeah. So they are like, it's not about, it wasn't the money part कि वहाँ पे वो business. It's about the way they presented and the things they were presenting. तो yeah, जब भी कोई business हो, I think area को, इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए. Then one can थोड़ा smartly play करना है, I think, with the market. Ahad, over to you. अगर questions हो तो पूछ. जी, जिस तरह मिस सबा ने डिस्कस किया कि टारगेट मार्केट रखकर आप अपने बिजनेस या आइडिया को लेकर जाएं. सो देयर इज अ क्वेश्चन इन मैसेज बॉक्स. मनाहिल मुस्तकिम पूछ रहे हैं कि अगर हम एक बिजनेस एक ब्रांड से भी या एक ब्रांड के मुताबिक अगर बिजनेस हम डिलीवर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, सो वो ये कह रही है कि हम अमूमन यहाँ पे वेंडर्स अवेलेबिलिटी का मसला होता है. वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये टर्म्स आ जाती है जिसमें बिजनेस को मसला दरपेश होता है. तो इनका क्वेश्चन यही था कि हम पे किस तरह एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि एक ब्रांड जैसा हो लेकिन इसमें ये वेंडर्स वाला इशू ना हो. सो हाउ यू विल प्रोसीड? सर, इसमें तो देखें, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज जो है वेंडर्स के बगैर तो चल नहीं सकती. ठीक है,
अगर आप पेप्सी की बात करते हैं तो यस, पेप्सी लेज भी पेप्सी के बैनर के अंडर आता है, एंड फॉर दैट पेप्सी ने जो है बैक एंड इंटीग्रेशन करके पोटैटो की फील्ड्स एक्वायर की हुई हैं कि वो आलू भी अपना उगा रहे हैं और उससे लेस बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट पेप्सी, इट्स अ बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स, देखिए वेंडर्स से छुटकारा नहीं है। मेरा जो MBA में सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट था, आई वर्क ऑन जिमको लाहौर के उसमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई चेन में मैंने वेंडर मैनेजमेंट पे काम किया था, एंड वो एक बड़ी कंपनी है जो कि पूरे पाकिस्तान में जिमको मोटरसाइकिल सप्लाई कर रही है, एंड दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स विद वेंडर। कमिंग टुवर्ड्स द पेशावर में बहुत ज्यादा मसला है जी वेंडर्स का। मैं खुद अपने बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आई एम डीलिंग विद वेंडर्स फॉर फ्यू बिजनेसेस, आई एम वर्किंग एज अ मिडल मैन, जहां पर मैं वेंडर से चीज उठाता हूं और आगे अपना कमीशन रख के जो है मैं चीज देता हूं। यहाँ पर जी मार्केट इतनी ज्यादा अनकंसिस्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोक्योरमेंट और वेंडर्स की बात करते हैं तो उसमें सारा क्रेडिट आ जाता है, ठीक है। मैं आपको कल एक काम कर दूंगा, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसमें जिसकी पेमेंट मोस्ट प्रोबेबली मुझे फरवरी में मिलेगी, बट वेंडर को जो है कल मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिया है, ठीक है। बिकॉज उसने कहा जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं दोगे मैं काम ही स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन पेमेंट उसकी मुझे फरवरी में आएगी, उस काम की पेमेंट। वेंडर्स को डील करने का तरीका आपका ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, you have to clearly identify the terms and conditions, whether you have a small घर का बिजनेस और बड़े एंड का बिजनेस। यहां पर ये बात याद रखिएगा, पेशावर और पाकिस्तान में एक अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा स्टॉक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि कल ये चीज सस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये चीज महंगी जरूर होगी, ये चीज कभी भी सस्ती आपके पास नहीं होगी। तो आप अपने बिजनेस के लिए थोड़ा स्टॉक फॉर लाइक फ्यू मंथ्स जो है आप स्टॉक करके रख सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड एंड इफ यू हैव अ बिगर अप्रोच। तो वेंडर ब्रांड, जहां ब्रांड को आप वेंडर्स के साथ जी रिलेट नहीं कर सकते, ब्रांड आपका बिजनेस होता है, ब्रांड इज वर्ड यहाँ पर होता है, और ब्रांड इज वर्ड आप लोगों के दिमाग में बिठाना होता है। तो आप अपने बिजनेस को ब्रांड इस तरीके से करें कि वो ब्रांड लोगों को ब्रांड लगे, ठीक है। एंड इट्स नॉट समथिंग ये एक मंथ का प्रोसेस है, ये नाइकी के टिक को टिक बनने में जो है बड़ा टाइम लगा है जी, ठीक है, एंड दे चार्ज फॉर दैट टिक, ठीक है। एप्पल का ये खाया हुआ सेब जो है, ये बेशक आइडिया वाज वेरी गुड, लेकिन इसको इस लेवल पर पहुंचने के लिए कि पीपल जस्ट विदाउट इवन अ चार्जर दैट विल कॉस्ट यू 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा, आप 3.5 लाख रुपए का मोबाइल जो है ले रहे हो, जिसमें 19 और 20 का फर्क है पिछले मोबाइल और इस मोबाइल में, बट स्टिल पीपल गो फॉर दैट, ठीक है। तो ब्रांड को ब्रांड बनने में जी टाइम लगता है। इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच कि किस अप्रोच से आप जा रहे हैं। वेंडर्स को मेरे मुताबिक, मैं वेंडर्स को किस तरीके से डील करता हूं, मैं उनको टर्म्स एंड कंडीशंस पे डील करता हूं, एंड बार्गेनिंग पावर अपनी स्ट्रांग रखें, दैट्स ऑल। एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो यही है कि हादिया नहीं नाजिया कुरैशी से कि एंटरप्रेन्योर सेज नॉट सेल योर प्रोडक्ट, सेल योर प्रोडक्ट विद इमोशंस। तो ये पूछ रही है कि सिर्फ वही एक स्टीरियोटाइप स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, यानी इमोशन को भी लिंक करना चाहिए जब आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो। देखें, ये जो बात ये इन्होंने इमोशंस की है, हम इमोशंस को टारगेट करते हैं हमेशा एड्स में। जब आप मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन करते हैं तो हमेशा इमोशंस को आप टारगेट करते हैं, नॉट इन योर प्रोडक्ट बेसिकली, बट इन द एड्स एंड जो एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप सबको पता होगा कि फेयर एंड लवली ने जो है अभी अपना नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया, बिकॉज ऑफ द कल्चरल कंस्टेंट एंड दिस वर्ड फेयर, कि अगर आप फेयर नहीं है तो इट्स समथिंग कि आपको किसी अपॉर्चुनिटी या किसी चीज से जो है कम किया जा रहा है। तो फेयर एंड लवली जो है जी अब वो ग्लो एंड लवली हो गई है। बाय कमिंग टुवर्ड्स द पार्ट्स, yes, you can play with the emotions and you should play with the good emotions only in advertisement. ऑलपर्स की एग्जांपल ले लें जी, हर साल रमजान में जो है ऑलपर्स अपना एड निकालता है, ठीक है। हर बार कोई नात कोई कर रहे होते हैं, वो पर्सपेक्टिव होता है, दिस आर व्हाट इज इट्स इमोशंस, ठीक है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस। तो आप जो है इमोशंस के साथ जो है एड्स में खेलते हैं, बेशक उनके साथ खेले। इंडिया के एड्स आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर दीज इमोशनल पार्ट, ठीक है। तो वो कनेक्शन है, नोकिया ने ऐड निकाला था जी के आज़ादी में जो है दो दोस्त बिछड़ गए थे जो कि बूढ़े हो गए हैं लेकिन अब भी एक दूसरे को याद करते हैं। तो उनके जो वो होते हैं नवासियां जो होते हैं, वो लिंक अप करते हैं किसी तरीके से, वो नोकिया के मोबाइल से कॉल करते हैं। वो बंदा पाकिस्तान से इंडिया ट्रैवल करता है जलेबियां लेकर, वो कहता है हम दरख्त से ये चीज तोड़ते थे, ये करते थे। तो इट्स समथिंग गूगल हमेशा यही करता है। गूगल पे वो सर्च आउट करता है कि बेकरी कहाँ है, वो मियाँ वाली की, गंज वाली, दिस एंड दैट, वहां से कनेक्ट करवाता है। तो यू हैव टू प्ले पार्ट इन द एडवर्टाइजमेंट्स एंड यस यू कैन प्ले इफ यू कैन टारगेट द राइट कस्टमर। अल्टरनेट टेबल जो है पलट सकती है इस चीज में।
I can add something to Mr. Asad. वो शान मसाला वाला जो ad बहुत मशहूर हुआ था, वो दो भाई जो बाहर थे. So वो शान मसाला back in home उनको अम्मी याद याद आ आया, रही तो है। उन्होंने वही बिरयानी पकाई. So they अम्मी याद आ रही है. So वही वो कितना बड़ा मीम बन गया था, और फिर शान मसाला ने उसको कितना ज्यादा उसने प्रमोट किया. शान मसाला वो उस मीम की वजह से सारे लोगों को पता था कि ये शान मसाला का मीम है. एंड सेम एज वो ऑल्पर्स जो कुछ लोग क्या फैमिली सिस्टम्स को ऐड में डाल देते हैं कि फैमिली में सारे लोग ऑल्पर्स इस्तेमाल कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट. ये एक क्वेश्चन आया अहद, काइंडली टेक इट, वो टीम बिल्डिंग पे कि हम स्टार्टअप टीम बिल्डिंग कैसे जी जी करें. ये हिरा खान पूछ रही है आपसे कि कैन आई हैव सम टिप्स फॉर टीम बिल्डिंग एंड फाइंडिंग कन्विंसिंग लाइक माइंडेड पीपल फॉर रनिंग स्टार्टअप. I would want Sabah to answer this. Well, yeah, it is tips though. Yeah, it's quite personal. Like it's about me. First, when I talk about myself, तो I have my own traits, personality I have. When I'm dealing with somebody, they either they accept me or not. They want to work with me or not. पहली बात तो ये आती है कि आप how you are with people. The tips तो यहाँ की है कि how good you are with you know working with other people. सबसे पहले तो आप अपने आप की एनालिसिस कर लो. If you're hot-headed, या फिर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या very convincing, या you get emotional, you need to find people opposite kind of traits in you. And there's my group of people के साथ जो काम कर रही हूँ, slowly and gradually people have left. So that is because they have not, either they couldn't or they have like other priorities. So it's not just कि आपकी team building, the passion that you both have or the startup, that is very important, and the commitment towards work. It is like if you cannot find a person who is as committed as you are towards your startup, it is very worth doing. Like जो आपका interest है वो भी fulfill हो रहा है, जो उनका interest है वो भी fulfill हो रहा है. The dream that you have with this work you're doing, or the person, you need to have that association that can give you can start a bit good team building. Other than that, it is totally very difficult to find good people or minded people. Very difficult, but it is not impossible as well. Yeah, so this is my side Hira, of Hira, I would just tip for comment this. So that if you want to yeah. add to it. हेरा, मैं इस पे सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हर किसी की प्रोफेशनल लाइफ है. मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल सर्कल जो है वो छोटा रखें और क्वालिटी रखें. प्रोफेशनल सर्कल अपना बड़ा रखें और उसमें नेटवर्क. सबा ने जैसे बात की, मैं एक तरीके का बंदा हूँ, आहद एक तरीके का बंदा है, सबा एक तरीके की बंदी है, अनम एक तरीके की बंदी है. कुछ पॉजिटिव, मुझे गुस्सा जल्दी आता है जी. अनम जो है वो इमोशनल है, आहद जो है उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है. हर किसी की अपनी स्ट्रेट्स हैं, प्रोज हैं, नेगेटिव हैं. ठीक है, आप इसको मैनेज इस तरह करो कि बट स्टार्टअप्स व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वाइट लॉन्ग स्टार्टअप्स में तो आपको बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. ऑलवेज गो फॉर अ मिडिल वे. नेवर इस तरह कभी नहीं होगा कि जो सिर्फ मैं सोच रहा हूँ वही बस कुरान का हर्फ है एंड हर बंदे को उस चीज पे ईमान लेकर आना है. नहीं, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू फाइंड मिडिल वे. आपको अपनी बात सुनानी पड़ती है, दूसरे बंदे की बात सुननी पड़ती है, और दोनों का अगर तो आपने उस बंदे के साथ, उस स्टार्टअप के साथ चलना है तो उसको आपने आगे लेकर जाना होता है और उस तरीके से ही आपने इस चीज को कंटिन्यू करना होता है. तो यू हैव टू फाइंड अ मिडिल वे एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान. Ahad, kindly take the last question और फिर हम एंडिंग करते हैं. जी जी सर, असद आपसे ज़रत ने पूछा है कि on which basis you are saying that कि entrepreneurship is going into the decline stage. वो business circle का वो कह रहे हैं, और दूसरा वो ऐड कर रहे हैं आपके बात से कि entrepreneurs are basically the job generators which is instability of the economy. इस पर आपका टेक. अच्छा, देखिए, मैंने आपको कहा है कि ये पर्सपेक्टिव है. मैं
अगर मैं अभी इस बात को कहूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों डाउनफॉल पे जा रहा है पेशावर और केपी की मार्केट में, उसका एक रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न आपका कोविड है। उसके कोविड के रिलेटेड ये बात है कि स्टेबिलिटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस चीज़ से। किसी भी चीज़ में जो है आप कंटिन्यूअस नहीं रह सकते, इन चीज़ों को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अब उसमें पर्सपेक्टिव है, कुछ लोगों के बिज़नेसेस बहुत चल रहे हैं। अब कोविड में अगर आप देखें तो फ्रॉम द लास्ट 9 मंथ्स बेकरी बिज़नेस जो है, जब कोविड कंप्लीट लॉकडाउन था, बेकरी का जिनका बिज़नेस था, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया जो है इस चीज़ से कमाया, बिकॉज़ बेकरी वाज़ ओनली थिंग व्हिच वाज़ ओपन, जिसको अलाउड थे टाइमिंग्स भी और सब कुछ भी, क्योंकि खाने-पीने की मार्केट थी। तो जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ जाती है तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कोविड है और कोविड की वजह से जो है रिलायबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। 1 सेकंड जी। एक तो है स्टेबल, आप उस आइडिया में नहीं रह सकते। दूसरा ये है कि आपको जो है इनकंसिस्टेंट, अब मेरा माइंड में ही आइडिया था और मैं ऑलरेडी कंफ्यूज था, और उसके बाद जो है फिर मैंने जब आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया, वहां से कोविड आ गया, वेंडर्स बंद हो गए। मैं जहां से लेट से चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहा था, वो चीज़ बंद हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। दूसरी बात आपने की है, तो मैं अगेन आई एम 50-50 के वेदर इट्स गोइंग फॉर अ डाउनफॉल स्टेज। अगर ये डाउनफॉल पे जा रहा है तो अगर सिचुएशन वापस करेक्ट होती है तो इट विल इवेंचुअली goes up because entrepreneurship has potential. बायर की मार्केट आप देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप में दे आर लाइक आई वुड से 100 years ahead of us, ठीक है। अब वो हमसे 100 साल के उसमें आगे। दूसरा आपने कहा यू वांट टू ऐड एंटरप्रेन्योर द जॉब जनरेशन ऑफ जॉब रिजल्ट इन स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। आई एम द पर्सन हु बिलीव्स ऑन अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी। मेरा सबा का और हमारे परवाने खानम का जो एक इनिशिएटिव है, हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार जब परवाने खानम का इवेंट होता है, हम किसी न किसी बेस पे स्किल्स की वर्कशॉप करवाते हैं। इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि फ्यूचर में जाके हम रूरल एरियाज में जो है गाँव की खवातीन को स्टिचिंग सिखाएँगे, काम सिखाएँगे। हमने ऑलरेडी वहाँ पर अवेयरनेस सेशंस किए हैं, ट्रस्ट भी वहाँ की खवातीन के पास इतना पोटेंशियल है। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर रूरल एरियाज को हम कहते हैं कि उनको छोड़ दो, उनके पास काम नहीं है, तो जो आपकी बिलियन डॉलर्स इकोनॉमी है, फीफा का वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल होता है, जिसको मेसी और रोनाल्डो लाते मारते हैं, वो फुटबॉल आपका जो है सियालकोट से बनकर जाता है, और सियालकोट में वही देहात की खवातीन हैं जो कि उसको बनाती हैं अपने हाथों से। तो अगर रूरल एरिया में पोटेंशियल ना होता तो बिलियन डॉलर्स इकोनॉमी जो है फीफा की, वो फुटबॉल हमारे सियालकोट से ना लेकर जाते। आपका क्रिकेट का जो हार्ड बॉल होता है, वो सियालकोट की खवातीन हाथों से स्टिच करती हैं उस चीज को। तो दीज आर फेमस, उनके पास बहुत स्किल है। द ओनली प्रॉब्लम इज उनके पास मार्केट नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड दैट्स अ बिग बिजनेस। आजकल की बहुत सी खवातीन, मैं नाम नहीं लूंगा एक ब्रांड का, बट पेशावर में एक बहुत अच्छा खासा बड़ा ब्राइडल का ब्रांड है, और वो जो ब्राइडल के कपड़े होते हैं, वो अंदर शहर मीना बाजार की तंग सी गली में एक बाबा है, और उसके पास वो चारपाई जैसी चीज के ऊपर रख के मोतियों से वो काम करते हैं, वो उनसे कपड़े बनाती है। 7,000 रुपीज का उस बाबा ने उसको ड्रेस बना के दिया, विच शी सोल्ड फॉर 60,000 रुपीज। ठीक है, तो द ओनली थिंग इज कि उनके पास वो नहीं है, बस वो कहते हैं कि हमारा कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है, सब कुछ है, बस हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, हमारा काम निकल रहा है। सो इट्स लाइक समथिंग समथिंग। मैं अगेन क्योंकि आप लोग सेशन अभी वाइंड अप करेंगे, आई विल समड अप अगेन। लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये कंपटीशन कब होगा, कहाँ होगा। गाइस, परवाने खानम इज फॉर फीमेल्स ओनली, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन द मेल पार्ट एज वेल, बट वो 2021 में विद फ्रॉम अनदर यस के प्लेटफॉर्म से हम इसको लॉन्च करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द कंपटीशन हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड। आप जस्ट हमारा पेज ज्वाइन करें, परवाने खानम, ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। यू विल सी plenty of activities. We are working on plenty of projects. We'll be including you as well. We need youth. You guys are the best motivation and the one of the best reason कि हम लोग जो है इस चीज पे काम करते रहे। This is for female only. आपके पास कोई भी अपना आइडिया है, आपका चलता हुआ बिजनेस है, यू नीड मोर फाइनेंसेस, आपका आइडिया डन हो चुका है, यू नीड फाइनेंसेस, या अभी सिर्फ आइडिया है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, उसमें पोटेंशियल है, जस्ट अप्लाई ऑन द फॉर्म। इट्स bit.ly/pk business idea। आप लोग इसको सर्च करो, फॉर्म हमारा अवेलेबल है। आई विल बी एक्सटेंडिंग द डेट्स टुनाइट टिल जो है, मैं आपको बता दूं, टिल 12th ऑफ दिसंबर जो है लास्ट डेट है फॉर द अप्लाइंग इन द कंपटीशन। 12th ऑफ दिसंबर तक आपके पास टाइम है। इफ यू नीड एनी हेल्प, इफ यू नीड मी सबा परवाने खानम इज अवेलेबल ऑल फॉर यू। यू कैन कनेक्ट अस विद फ्रॉम पेज, कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दैट्स ऑल। अहद, ये वाला पेज नहीं है, ये दूसरा पेज है, दैट्स ओल्ड पॉड। आप, मैं दूसरा पेज का लिंक आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है जी, ओके Thank you, ma'am. the session
Yeah, 6 टाइम का पता नहीं चला. थैंक यू मिस्टर असद एंड मिस सबा दुरानी. आई डिडंट नो कि ये इतना इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम था इतना सेशन अरेंज करना, उसको होस्ट करना. सो आई वाज रियली अफ्रेड. और मिस्टर असद को पता है मैंने उनको मैसेज किया कि बी ऑन टाइम एंड ही सेड डोंट वरी. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मैम सबा और आप दोनों को. एंड थैंक यू ऑडियंस जिन्होंने क्वेश्चंस किए और इस सेशन को इंटरैक्टिव रखा. सो थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank sir. you, Ji. Thank you so much. Looking forward to, and best of luck. Thank you so much. Best of luck, guys.